मॉर्निंग कॉफ़ी के लिए कहाँ चल रहे हैं सर आज? वो कॉफ़ी के लिए नहीं चल रहे हैं, it's a brand coffee. So basically it's a brand called Tavasa, specialty coffee brand. And today we are heading there for our meeting. They basically are looking to build the brand online as well. And we are heading for their roastery. तो वो भी हम दिखाएंगे आपको roastery कैसा होता है, coffee roastery. They're part of SCA, which is Specialty Coffee Association. They're looking to build a premium coffee brand in India as well as in UK, going global. So yeah, very exciting. Let's head towards their roastery and we'll show you all the details and how the coffee looks like, because we can't really show how it smells. So sir, हम ये जो तवासा कॉफ़ी जा रहे हैं, and I've read about this that this is an SCA coffee, Specialty Coffee Association. So what is this? क्या है इसके बारे में? Okay, so specialty coffee is basically those coffees जहाँ पे आपका sourcing से लेके processing, roasting and everything is defined. So it's not like you're drinking any coffee which is roasted somewhere, sourced from somewhere, and processed somewhere, and you're getting a coffee. So specialty coffee refers to that where the brand is giving you a very specific कि इस particular coffee state से आ रहा है, ये इस height पे produce हो रहा है. Then how are they processing first coffee beans, and then how are they roasting it, and then how are they crushing it, and then giving you the final product. So आपको या तो roasted coffee beans के format में ये मिलेगा, या even powder format में मिलेगा. And that's all about a specialty coffee segment. It also defines कि वो ethically sourced है कि नहीं, farmers को right compensation मिल रहा है कि नहीं है उसके लिए. So all of that is also considered, and there is an association for it which makes awareness about specialty coffee and also how to make the coffee and all of that. So that's all about specialty coffee. So sir, it means that Tavasa is a premium brand, और फिर इसकी शायद से प्राइसिंग भी वैसी होगी, इनकी ब्रांडिंग भी वैसी होगी. So what else we are going to do with Tavasa, and how will we going to brand them? What is the next steps? So I think right now the brand is looking to position their product in a way that reflects the specialty coffee and the effort that they are putting in. तो जो वो जिस तरह का प्रोडक्ट वो ला रहे हैं, जिस तरह का एक्सपीरियंस वो दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट फॉर्मेट में कैसे दिखे, कैसे पोजीशन करें वो अपने आप को. दैट्स द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. Obviously then post that execution will also come into picture, that how do we do their media, how do we do their packaging, how do we present them in front of audience, so all of that. But primary is at this time is to understand how can they position their product and the brand for consumers of specialty coffee. So that's the primary requirement. Yeah, so because I was also going through many websites of SCA Specialty Coffee. So there was a lot of storytelling, lots of that how the coffee is actually sourced from their major places. Right. तो मतलब ये सारी चीज़ें भी हम लोग कवर करेंगे कि कहाँ से आ रही है, कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, क्या चीज़ें हैं. Right. तो इसमें मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मीडिया इन्वॉल्व रहेगा. हाँ, so storytelling तो because when you're saying specialty coffee, then it means ये सारी चीज़ें आपको showcase करनी पड़ेंगी. Else it's like a product in the package, right? Depending on you have this coffee bean type, Arabica, Robusta, depending on कि किस height पे बन रहा है, कहाँ पे produce हो रहा है. So that is one. Then coffee beans की भी grading होती है, AA, AAA plus. All of that. So depending on the size of the coffee bean, drying कैसे हो रही है या washing से हो रही है processing. So all of that is also needs to be covered, or that needs to be told. And then very important part is roasting. So roasting कैसे हो रही है, mid roast हो रही है, light roast हो रही है, dark roast हो रही है. What is the procedure? Because all of these define कि आपका taste कैसे आने वाला है कॉफ़ी का, जो आप final level पे consume करेंगे. That is also important to inform or to update the audiences about this. So all of these needs to be told. Storytelling is obviously very important, and making process भी दिखाना होगा. और फिर USPs क्या है, क्योंकि कॉफ़ी जो होती है, कॉफ़ी के अंदर बहुत सारे इन्फ्यूजन्स भी होते हैं जो लोकल स्टेट के वजह से होता है जहाँ वो प्रोड्यूस हो रहा होता है. तो वो उनमें कौन सा ब्लेंड यूज़ हो रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है. तो वो सारी चीज़ें मतलब बेसिकली हम एज अ मार्केटिंग एस्पेक्ट में कैसे इनको इन्फ्यूज़ करेंगे और ऑडियंस तक कैसे पहुंचाएंगे ये मैसेज इज़ द प्राइमरी रिक्विजिट ऑफ दिस ब्रांड.
तो हम जो अभी स्कोप ऑफ वर्क SOW हम जो कर रहे हैं इसमें उसमें हमने सारा डिफाइन किया हुआ है. सो वी हैव डिवाइडेड द होल एक्टिविटी फॉर ईज इनटू 3 स्टेजेस. वन इज़ द प्री लॉन्च रेडीनेस और प्री लॉन्च सर्विसेज और लॉन्च रेडीनेस, जहाँ पे हम मार्केट रिसर्च, कस्टमर इंसाइट्स, कस्टमर प्रोफाइलिंग, आइडियल कस्टमर पर्सोना, ये सब हम इनको प्रपोज कर रहे हैं कि ये एक्टिविटी हमें करना पड़ेगा. एम्पैथी मैपिंग करेंगे हम कि कस्टमर को एक्चुअली क्या चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सोल्यूशन आर दे लुकिंग फॉर. दैट नीड्स टू बी रिसर्च फर्स्ट, एंड उसके बाद देन वी कैन मेक अ स्ट्रैटेजी, जो हम गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बोलते हैं. So and sir, they were also very concerned about their packaging. पैकेजिंग. सो पैकेजिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और जैसा मैंने बताया कि एम्पैथी मैपिंग होगी और ब्रांड पिलर्स के बारे में बात होगी और ब्रांड टोनैलिटी के बारे में पहले बात होगी. ये सारी चीज़ें ब्रांड गाइडलाइन में फिगर आउट होंगी. उसके बाद हम ब्रांड पिलर्स जो होगी वो हम इनके पैकेजिंग में इन्फ्यूज़ करेंगे इन डिज़ाइन एलिमेंट्स के फॉर्मेट में. उसके बाद देन विल टॉक अबाउट द मटेरियल ऑफ द पैकिंग, राइट, जो कि अभी उनका एक कंसर्न है. सो मटेरियल, पैकिंग मटेरियल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंसिस्टेंसी इन पैकिंग मटेरियल, मास्टर डिज़ाइन, एडेप्टेशन अक्रॉस डिफरेंट सब कैटेगरीज एंड उनके जो डिफरेंट साइजिंग है पैकेजिंग में, और स्टोरी टेलिंग थ्रू पैकेजिंग ऑल्सो. जो भी ब्रांड पिलर्स हैं वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए पैकेजिंग के ऊपर. तो वो ऑब्वियसली वी विल कवर दैट एज वेल ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन एंड ड्यूरिंग द मीटिंग. So yes, that is something that we'll do. Also merchandising. So same brand guidelines to be infused in different brand assets like inserts, thank you cards, merchandise like T-shirts and different branding elements जो जाएगी. तो वो भी हमने प्लान किया हुआ है उनके लिए कि कैसे रहेगा. Overall, I would say that these are the elements which a very new brand or very small brand do not understand. Upcoming brands or emerging brands, they need to understand that yes, they understand that the product is ready. They usually understand कि जब वो मशीन से निकल गया, that's the final product. That's not the product. That's the consumable. Consumable और product में फ़र्क है. तो consumable तो ready होता है, but retail readiness के लिए ये सारी चीज़ें जो आपका customer profile, TG identification, brand guidelines, brand identity जिसमें logo, color palette, templates ये सब होता है, आपका मर्चेंडाइज, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है रिटेल रेडीनेस के लिए. तो ये दिस इज़ व्हाट वी नीड टू टॉक विद द ब्रांड कि दीज आर द नीड्स दैट यू नीड टू सेट अप बिफोर गोइंग टू द मार्केट. तो इमीडिएटली कंज्यूमेबल को लेके एक प्रोडक्ट, एक डब्बा बना के उसमें लेबल लगा के वो मार्केट में ले आते हैं, विच देन सारी डिस्कवरी फिर ऑन द गो हो रही होती है. मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा नहीं, मतलब ऐसे ब्रांड नहीं बने, बट वो ऑन द गो हो रहा होता है. मार्केट के साथ साथ आप सीख रहे हो, तो आप भेज रहे हो, तो गलत प्राइसिंग कर देते हो, फिर रीप्राइसिंग करते हो. फिर कई बार ये करते 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 आपकी मार्केटिंग में आपने मतलब आपकी जो इमेजरी है वो एक पर्टिकुलर सेट हो जाती है, या बार बार रीसेट करना बहुत चैलेंज हो जाता है. तो ये दिस इज़ व्हाट वी सजेस्ट द ब्रांड टू डू प्रॉपर रिसर्च बिफोर हेडिंग इन द मार्केट. एंड वी मेक देम अंडरस्टैंड कि ये एलिमेंट्स होते हैं रिटेल रेडीनेस के लिए. वंस दीज एलिमेंट्स आर सेट, देन वी हैव अ लॉन्च स्ट्रैटेजी कि अब हम ऑडियंस तक पहुंचेंगे कैसे. तो वो फिर हम लॉन्च करते हैं. लॉन्च के भी अपने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे GTM गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी जब बन जाती है ये सारे रिसर्च करने के बाद, तो उसको एग्जीक्यूशन की बारी आती है. वो एसेट्स हमें पॉपुलेट करना होता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, आपकी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, मार्केट प्लेसेस पे. और जो कंटेंट भी बनता है वो एज पर द स्ट्रैटेजी ही बनती है, एज पर ICP बनता है. आपका कम्युनिकेशन क्या होने वाला है, टोनैलिटी क्या होने वाली है, ये सब कुछ आपके ICP पे और TG पे डिपेंड करता है. I have one more question. Yes. That is a very, I would say that, for an example, I am a very newcomer to all this entrepreneurship. और अगर मुझे ये सब कुछ सीखना है, all these layerings, all these underlining, तो सर ये सब मैं कहाँ, ये सोर्सेज कहाँ है कि मुझे ये सारी चीज़ें पता चले. विद दैट, बिकॉज इफ आई एम गोना स्टार्ट माय ओन बिजनेस, तो मुझे ये सारी चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, सो दैट आई कैन तो ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से सीख सकता हूँ, ये सारी चीज़ें कैसे, मतलब कैसे मिलेंगी. हाँ, तो देखिए आपको तो मिलता है प्रोडक्ट, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट. जो ये सारी रिसर्च होती है ये बैकएंड पे होती है, और बैकएंड ब्रांड्स के पास होती है गाइडलाइंस, जो कंसल्टेंट्स या फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स गाइड करते हैं, या फिर इन हाउस होता है. तो दिस इज समथिंग विच इज़ बेसिकली योर मेन फ्रेमवर्क. जैसे आप बोलेंगे कि मुझे कार तो है, बट मुझे कार बनानी सीखनी है, या मुझे कार बनानी है खुद की, कैसे होगा. वो फ्रेमवर्क है, तो वो फ्रेमवर्क तो ऑब्वियसली ब्रांड्स के पास होता है.
तो इट इज़ अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन कि ये एज एन एंटरप्रेन्योर और अ न्यू वन हु इज़ न्यू इन दिस कैटेगरी, तो उनको कैसे पता लगेगा? तो ये कहीं भी आपको प्लेस्ड नहीं मिलेगा, मतलब जहाँ पे आप जाके इसको निकाल सकते हैं। डेफिनेटली आप रिसर्च कर सकते हो कि ब्रांड गाइडलाइन होता क्या है, कैसा होता है, उसमें एलिमेंट्स कैसे होते हैं, दैट यू कैन रिसर्च, राइट, एंड यू विल गेट सम एलिमेंट्स ऑल्सो, बट दिस इज़ नॉट यू नो फिक्स सोल्यूशन कि ये ब्रांड है तो इसके लिए ये लगेगा। फ्रेमवर्क रहता है, बट डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, प्रोडक्ट, पोजीशनिंग, टीजी, ये सब थोड़ा बहुत चेंज होता है कि हमको कैसे रिसर्च करना है। तो ये डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट यू लर्न विथ एक्सपीरियंस, दैट यू हैव सम एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, तब आपको आइडिया लगता है कि अरे ये तो हमें चाहिए होगा, डिस्कवर करना पड़ेगा कि है क्या। ओबियसली वी आर ऑल्सो प्लानिंग अ कोर्स अराउंड इट सूनर, क्योंकि काफ़ी डिमांड या काफ़ी रिक्वायरमेंट है इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, ब्रांड्स के लिए भी। आई एम प्लानिंग एन एजुकेशन ऑन अराउंड इट, a blog of this blog is also a part of that thing कि we should have awareness about these terms and these elements and which is very helpful for brand building। तो करेंगे, इस पे भी करेंगे, we'll do a blog only कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं। कुछ काफ़ी एलिमेंट्स हमने कवर कर लिए हैं इसके अंदर, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है मैं इसी ब्लॉग में और करते रहूँगा। जैसे हम तवासा के साथ और एक्सरसाइज करेंगे आगे गोइंग फॉरवर्ड, तो we'll introduce this स्पेशली फॉर इंटरनेशनल मार्केट में क्या क्या चाहिए होता है। कंप्लाइंसेस, जैसे कंप्लाइंसेस भी उन्होंने पूछा था कि कंप्लाइंसेस में कैसा रहेगा, लेबल में कंप्लाइंसेस कैसा रहेगा, यूके और इंडिया, यूएस में पैकेजिंग में भी फ़र्क होगा क्या, तो वो सारा कुछ डेफिनेटली विल कवर दैट ड्यूरिंग दिस कोर्स। Don't worry guys, I'll bring more water from this ocean to you guys. More water, more knowledge from all these sources, and I'll keep updating you, and sir will keep updating you about everything you guys want to know. थैंक्स ज्योतिष, एंड होपफुली और सारा कंटेंट बाहर निकल पाएगा जल्दी और finish this blog, will finish everything. right, because there's a lot to do now. We have more calls to attend, another toy brand that we have to connect with on the same topic, so maybe again for toy भी थोड़ा आप बाहर निकाल सकते हो कंटेंट की, हाँ क्या बात कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। Everything we do, we're gonna keep updating you. इसी में Okay, so we are here for Tawasa. Wow. Coffee, beans, grinding, roasting, all at Tawasa. Amazing. Let's go in and figure out all about Tawasa. So this is basically for mixing the no, this is for roast, so this is roasting, वो रोस्टिंग, ये इसमें पूरा बीन्स आता है और फिर मिक्स होता है कि यहाँ से हीट आता है, रोस्टिंग यहाँ से वो डलता है और उसके बाद यहाँ पे रोस्टिंग। ये पीस पर कुत्ते पे, तो मुझे लगा कि ये ब्रांड आप तो सबको पहले मैं आप सुपर एक्चुअली इनका आगे बताना है कि दिस इज समथिंग दैट यू अलाइन विद। So इसमें I'll tell you, if you want to go back, see like Baza, I don't know, Davidoff doesn't need to be here, Apu also doesn't need, ठीक है, but other than that the coffee ship, it's not society, it's ठीक है, but obviously using political throughout they will get a cheap and the एक बार तो ऊपर से आप बीज डाले होती खुलती हैं। अच्छा, और आप इसे फिर ऐसा घुमा के अपना ग्राइंड करते रहो, मैनुअल ग्राइंडिंग,
माल निकलेगा और उसको करो और अपना पूरा ओवर करो। जैसे आप सैसेट है ना, मेरा बनाया बस वही ये पूरा ओवर है, इसके लिए फिल्टर आता होगा इसी के अंदर होगा। इस पूरा मिलेगा ना आपको पीछा के पर फिर सेट ये रहा सेट। हाँ या सेट ये रहा से एक साइड हो रहा, वो तो घर की है, वो तो वो बेस्ट है। उस टाइम वो आपका वो ओरिगामी होंगे, उस पर सेपा और नीचे का, और ये पीस है ना। और हमारी 1 किलो बीन्स, 1 किलो बीन्स बस अब आप दिन भर 4 बार भी किए तो ऑफिस के लिए बढ़िया। एक आदमी को खिला दो, किसी को भी अच्छे से बनाने, क्योंकि ये आर्ट अच्छा जो बनाएगा वो अपने आप को डेली बेसिस पे इनहेंस करेगा। अच्छा। आप ओकेजनली बनावे तो उतनी अच्छी नहीं बना पाओगे जो हर दिन 4 बना रहा। नाश्ता हो गया तो ऊपर से उसी की मांगेंगे, इसी की चाहिए तो उसमें क्या होता है, ग्राइंडिंग को क्या कोर्सनेस? तो वो सेट होता है। अच्छा में सेट कर देंगे हम, आपको डालना गए हैं लोग, जैसे आप भाषिक की कभी आप समझ जाओगे, यही हमें चाहिए। चल ये सिखा देगा आपको बंदा, या तो ट्रेनिंग हो गया अभी तो टाइम ट्रेनिंग की लाइन पे आप जा ट्रेनिंग पे कर किसी को भेज दें किसी को भेज देंगे ऐसी। पापा जी आगे देख तो हाँ वो चैलेंज पे क्या है, उससे क्या होता है आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा पता हो जाए। करेक्ट। फिर आप उस पर डाल ये जो इतने खड़ा दूंगा मैं, उनकी पैकिंग मेरे से करवाई। हाउस आप हिमालय में डला, हम भी क्या रहे उत्तराखंड में हम तो बना रहे हैं, क्राफ्ट कर रहे हैं। मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल, अब मेरे वो हम कर देंगे, वो हम कर देंगे। मैं दो जितना दे सकता था मैंने उनको दे दिया। अब मैंने कहा आप जो प्रोफेशनल है, मेरा की कहने का मतलब है निकलते हुए दिख जाएगा। हाँ अभी आ रहा है। हाँ वो हमने किया है एक ब्रांड के लिए। I think that's a struggle that's not work. So that's why I haven't done this. Because it's easy to create the video. It's very difficult to put your product into that video. That's why this struggle happening today. Right? मैं आपको भेज दूंगा, we've done it for multiple things. But so I have a friend who's sort of working a lot on this. I have a friend who he did this from MIT. फिर वो US रहा कुछ टाइम, he said कि यार कॉल वो ये कंट्री कॉलिंग आ गया तो वो he came back. तो भी I'll get that done. मतलब मैं भेज दूंगा। Not going to be one day. No. But whenever you come here, we have an office. You come over there. So you can Sir, मैं आपको because I keep on coming there. A lot of customers are there. हाँ, it was amazing and hope you like the blog and you'll also get to learn about Specialty Coffee and a lot more about coffee. So we'll continue this blog. We'll also visit the cafe soon and we'll also give you the idea about how coffee is being sourced, how coffee is being prepared and all the knowledge and all the information about coffee in general. So looking forward and do comment and share your views about coffee and Specialty Coffee. Thanks.